Welcome friends, welcome to iLitmus Study Chemistry Online. Today we are going to deal with third chapter of 9th standard NCERT pattern science. Yeah. So this is our third chapter, atoms and molecules. So what are the different topics under that? Law of chemical combination. Then under that we'll be studying laws of conservation of mass. Then what is the law of constant proportions. Then we will understand what is an atom. Then symbols of atoms of different elements, atomic mass, in what form this atom exists actually, and what is molecule, then molecule of elements, molecule of compounds, what is an ion. Then we'll try to understand how to write a chemical formula, yeah, and then we'll understand the molecular mass and mole concepts. This is the last topic on which you can expect some numerical questions on this particular chapter. Yeah, so there we'll understand molecular mass, what is formula unit mass, what is mole concept. So let's start. So in our Indian ancient scientists also they actually conceive this, that keep dividing any padarth means any material, yeah, after a time you cannot break into small part, yeah, and that's called Parmanu. Then one another thinker, Pakuda Katyana, he also explained that particles normally exist in combined form, which we call matter. Okay, so all the particles, small particles, actually constitute something called matter. Then this Democritus and Leucippus, they define it in a more descriptive way. Go on dividing matter, after a time you cannot divide anymore, and that's called atom. They give the name of this word atom. Then what is law of chemical combination? So law of combination says this, mass cannot be created nor destroyed. Okay, what it mean? Why it says that mass cannot be, fine, understand, created. Okay, it's available somewhere, you cannot go and create a new one, it's already there. But how can you destroy it? Yeah, actually you cannot go and break a atom inside that. That's why you cannot go and destroy any atom of any of the any of matter, any of element or anything. Okay, so when any chemical reaction goes on, the atoms actually doesn't destroy, it's always as it is. Okay, and every atom has a mass, so the total mass, the total atoms in a mass doesn't go anywhere, it's always intact. It just change its molecule compound gets changed. So hydrogen combines with oxygen, makes a H2 as a molecule. Okay, so the two different elements combined and made a compound. It doesn't mean that the atoms has lost, the atoms are still intact, yeah, in that H2O. So the mass will be also conserved. The law of constant proportion, what it says, in a chemical substance the elements are always present, okay, in a definite proportion. ऐसा नहीं है कि वाटर का फार्मूला जो हो जाएगा कल से H2O3 ऐसा होने लगेगा, नहीं. वाटर कहीं से भी आप लेंगे, it will be water, it will be always H2O. okay, if anything then it's different compound itself, yeah, like H2O2, hydrogen peroxide, it has entirely different chemical properties and all. So one compound will be having a definite proportion of mass into that, yeah. So one element of oxygen and two element of hydrogen, so 16 gram of oxygen, 2 gram of hydrogen will be available in 18 gram of water. Okay, then comes the very important theories which was developed by Dalton. He did a lot of good research into chemistry and came with really very nice ideas which put the foundation of these atoms and all. What he says,
he says that every matter is made of atom. Believe this concept is applied to everything, whatever you see. Yeah, without any exceptions. Every matter has inside some atom. So what this picture represents? This picture is showing that even the pencil, if you'll see that it's made of like inside there is graphite. If you'll just keep looking into that, again it's made of some kind of matter. Okay. Some kind of atom is inside that. So you take anything which you can, and everything is made of some other matter, atom. Then what is the second theory? He says that atom cannot be created or destroyed. Really? What about proton, electron, neutrons? Yeah, inside atom you have different protons, electron, neutron, right? So how is that? Cannot break it? No, it's quite hard. You cannot separate protons out of neutrons. Yeah, it's difficult. But if the modern theory says that it's no more that atom cannot be break into the next part, that's fine. But for your understanding, just understand that atom cannot be created or cannot be destroyed. So what do you say? It's like showing that we're getting hammer and putting on atom. It cannot be done. Yeah. Atoms of given elements are identical in every sense and possess some chemical property. So atoms of different elements have different chemical property. Okay. यदि दो एटम सेम तरीके की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम तरीके केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एंड आर सेम, देन इट मस्ट बी द सेम एलिमेंट. ठीक है. एक सोडियम का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम कैन नॉट बी सेम इन एनी टर्म्स, in terms of mass, in number of inside number of neutrons and protons, so the weight, everything is different. Okay, so they will exhibit a different chemical property at all. Okay, atoms combine each other to make compounds and always combine in whole numbers. Yeah, ऐसा नहीं होता है 1 कार्बन एटम, हाफ कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम कुछ ऐसा बना के C1/2H2, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि आप जब अच्छे से देखेंगे, जब जो केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़ेंगे, जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में होती है, हाफ एटम के बीच में नहीं होती, क्वार्टर एटम के बीच में नहीं होती है. ठीक है, वो फुल एटम पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से मिक्स करके H2 बना रहा है, तो ऑक्सीजन के जो आउटर रिंग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बाय 1 हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन. ओके, ऐसे नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है अलोन 2 हाइड्रोजन एटम से शेयर कर जाए. ओके, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑलवेज इन होल नंबर्स. A relative number is constant in compound. We talked in the previous slide also that the number of atoms in a compound, it's always like fixed. H2O means 2 hydrogen, 1 oxygen. Then आता है atom. What is atom? Atoms are building block for every matter. Yeah, they're very small in size. Atomic radius in nanometers. So you cannot like see that. No way. Yeah. The symbol of atoms. Earlier the name and symbol were defined by origin of discovery. किसने चालू किया, किसने बनाया, डाल्टन ने कुछ अपने बना दिए. ऐसा हाइड्रोजन का ये सिंबल है, कार्बन का. बाद में IUPAC like change everything and they have given a that okay, this the element name is aluminium, the symbol is Al. Now you'll see that कि always जो पहला जो लेटर होता है it is be capital and next one is small letter. So A will be capital, L will be small. Okay, in this way all the elements has been like decided. Yes, naming convention also is coming from IUPAC. Atomic mass. डाल्टन का डाल्टन ने जो वो प्रूफ किया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक मास.
कोई दो एलिमेंट का मास सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफाइनिंग फैक्टर कि no two different element can have same atomic mass. The mass of atom is due to protons and neutrons, ठीक है। और सबके अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। जो बाहर के बॉन्डिंग है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलते हो रही है, ठीक है। तो मेजरिंग मास ऑफ एटम्स इज डिफिकल्ट, सो रिलेटिव मास वाज डिफाइंड, ठीक है। और एक मास को मेजर करना इज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। कि कैसे, तो क्या किया गया कि कार्बन को लिया गया। क्यों कार्बन को लिया गया? देयर सो मेनी थ्रीज बिहाइंड दैट, को बहुत सारे चीज़ों में अवेलेबल रहता है कार्बन। प्लस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच आई लाइक गैदर्ड इज दैट कि फिर सी हाइड्रोजन का सबसे स्मॉल एटॉमिक मास है उधर में, ठीक है। एक प्रोटॉन उसके अंदर में होता है, तो ये जस्ट 1/12 है कार्बन 12 का, ठीक है। ये क्या बोलता है कि हाइड्रोजन हो गया होल नंबर 1 एंड उसके बाद से 2 3 4 व्हाटएवर चलना है चल दो, ठीक है। ऐसा है। तो इसमें मास ऑफ वन एटम, इसमें आप देखेंगे एक चीज देखिए इसमें कि कार्बन भी हमेशा 2-3 आइसोटोप में होता है, कार्बन 12 कार्बन 13, लेकिन जो मेजर जो परसेंटेज है 98.892% इज ऑलवेज कार्बन 12, ठीक है। सो कार्बन 12 आइसोटोप हैज बीन टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव मासेस, ओके। एंड जिसका वो है 12.0111, या। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये हीलियम एटम इसमें दिखाया गया है, तो 2 जो टॉप पे है दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यदि 2 प्रोटॉन है तो अंदर में 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। नहीं, न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है, सॉरी अपॉलॉजी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एलिमेंट में बराबर रहेगा, ठीक है, सो दैट कि एलिमेंट न्यूट्रल रहेगा। और नीचे जो करते हैं ये एटॉमिक मास दिखाया गया है। ए म्यू जो है पहले था, आजकल म्यू की तरह से आईपीएससी ने बोला है कि म्यू दिखाओ इंस्टेड ऑफ ए म्यू। सो कार्बन 12 बिकम काइंड ऑफ रेफरेंस वेट। वो बटखरा देखा है, बटखरा जिसे तराजू पे तौलते हैं, ठीक है। तो 1 kg कैसे लोहे को पता चलता है कि 1 kg है, उसी तरीके से ये कार्बन 12 समझो कि एक बटखरा है जिससे सबको वेट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को वेट करना हो, बोल दिया हाँ भाई ये 1/12 है तेरा कार्बन 12 का, तो कार्बन 12 का वेट 12 है तो उसका हो गया 1, ठीक है। ऐसे मेजर किया जा रहा है। एटॉमिक मास is represented earlier as mu, but now IPC is recommended mu. So hydrogen has 1 proton inside, no neutron, so atomic mass is equal to 1 mu. Oxygen has 8 proton plus 8 neutron, so atomic mass is 16. ठीक है। Then calculate number of electrons in following. Yeah, quick here. NH4 कैसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 4 वो हो गया। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 + 4 इज 11। NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन कैसे बना होगा? डेफिनेटली इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा उधर कहीं, ठीक है। तो ऊपर हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 11 आया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया है, मतलब 10 हो गया। देन CH3 माइनस आयन, ये कैसे होगा? कार्बन में कितना हो गया? हाइड्रोजन में कितना हो गया? 3, ठीक है। अब इसको तुमको वो करना है, देखना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा इसमें, ठीक है। तो CH3 में टोटल निकालो इलेक्ट्रॉन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐसे तुम कोई भी आयनिक कंपाउंड वगैरह भी दिया हो तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या। How do atom exist? Okay, they rarely live independent, या जैसे ऑक्सीजन O ऐसे अकेला कहीं नहीं रह सकते, देखेंगे आप, ओके, हमेशा O2 रहेगा, हाइड्रोजन H2 रहेगा, ठीक है। yes, some these inert gases are there which are like helium, neon, etc etc, so they exist in single atom, He it can exist because it doesn't combine, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, okay?
मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो O2 इज ऑल्सो एलिमेंट, H2O इज ऑल्सो कंपाउंड, O2 is also compound, H2O is also compound, okay. O is element, H is element, okay. Chemically bonded and tightly hold together due to attractive forces, ठीक है। देखा इसमें कैसे अट्रैक्ट, वो पॉजिटिव निगेटिव जो उसमें रहता है, एक जैसे हाइड्रोजन में पॉजिटिव है, ऑक्सीजन में निगेटिव है, दोनों आपस में बाइंडिंग किए रहते हैं और वो H2O ऐसे स्टेबल रहता है। और इसी ही जगह वो एक एक केमिकल करके कैसे बनता है, तो वी सी विथ आवर नेकेड आइज एज ए वाटर, ओके। बहुत सारा मॉलिक्यूल को मिला के जो दिखता है मैटर, हमें आँख से जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स मोस्टली एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, O2, O3, ठीक है। O3 इज कॉल्ड ओजोन। एटॉमिसिटी क्या आएगी? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल। सो O2 इट्स 2, O3 इट्स 3, H2 कितना हुआ? 2, ठीक है। Molecules of compound, two different elements join in a specific proportion to make a molecule, example H2O, ठीक है। देखिए कैसे ज्वाइन किया हुआ है, ऑक्सीजन को दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन उसमें अटैच्ड है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पेसीज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड आयंस, ठीक है। एलिमेंट चार्ज होता है? नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उतने प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल हो गया। तो चार्ज कैसे होगा कोई एलिमेंट? जब या तो एलिमेंट इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर उसमें आ जाए। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर गया मतलब कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इसी वजह से यदि कहीं से इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दैट एलिमेंट बिकम मोर, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया आउटर रिंग से, तो क्या हो गया सोडियम प्लस आयन। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज वैलेंसी। एग्जाम्पल, कार्बन इज वैलेंसी ऑफ 4, हाइड्रोजन है वैलेंसी ऑफ 1। तो कैसे हाइड्रोजन के बाहरी सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इट हैज कैपेसिटी टू गिव दिस इलेक्ट्रॉन टू समवन, टू शेयर दिस इलेक्ट्रॉन टू समवन, ओके। तो वो उसमें एक वैलेंसी एक हो गई। इसे कार्बन वो लास्ट में 4 एक्सेप्ट करने की इसमें ताकत होती है, तो दैट इज ए वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है। एंड रिमेंबर वैलेंसी चेंजेस, इट्स नॉट ए कांस्टेंट थिंग। सो हियर यू कैन सी कार्बन बाहरी रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, जो कि इट कैन एक्सेप्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। हमेशा ये 4 देने, हमेशा 4 लेने के लिए उधर में तैयार रहेगा, टू मेक इट 288 जो बनाते हैं, ठीक है। वो लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबल होता है, तो 4 इसमें आ जाएगा। हाइड्रोजन में 1 बाहर है, ठीक है, उसकी वैलेंसी 1 हो गई। ऐसे देखिए कि कैसे कंबाइंड हुआ है कार्बन के साथ शेयरिंग में। Why कैल्शियम ऑक्साइड इज रिटन एज CO नॉट COCA? यस, IPC बोलती है कि पहले मेटल्स को लिखो फिर बाद में नॉन मेटल्स को लिखो। तो कैल्शियम इज मेटल, बाद में ऑक्सीजन आना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला देखिए, कुछ फार्मूला कैसे से सोडियम की 2 माइनस है, सोडियम की 1 उस पर होती है पॉजिटिव, ठीक है। CO3 पे 2 है वैलेंसी, तो उसको फार्मूला को बराबर करने के लिए कैसे करेंगे? 2 सोडियम और 1 कार्बन CO3, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूला लिखेंगे। राइटिंग केमिकल फार्मूला नीड टू नो द वैलेंसी व्हिच डिफाइंस हाउ मेनी एटम्स विल कंबाइन, ठीक है। एग्जांपल, मेथेन इज मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू CH4। तो यदि आपको, अच्छा ये वाई नॉट C2H8, देयर इज नथिंग लाइक C2H8, इट्स ऑलवेज CH4। जब भी आप एक कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं तो एक उसमें ऐसा आपको एलिमेंट दिखेगा जिसके उसमें एक अकेला दिखेगा, जैसे Na2CO3, इसमें C देखेंगे तो C अकेला है, उसमें 2, 3 नहीं है,
ठीक है। वाई कैल्शियम ऑक्साइड इज रिटन इज CaO एंड नॉट OCa, बताया भी आपको, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मस्ट बैलेंस, जब भी आप फार्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव को आप बैलेंस करना पड़ता है। एक दूसरा देख लीजिए, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है। अब दोनों आपको बराबर करना पड़ेगा, तो आपको 2 क्लोरीन का चार्ज, दोनों के चार्ज बराबर होना चाहिए। सो Mg पे 1 चार्ज है और Mg पे 2 चार्ज है और क्लोरीन पे 1 चार्ज है। तो क्या किया गया, Mg को 1 रखो और क्लोरीन को 2 रखो, तो 2 चार्ज उसका बराबर हो गया। कैलकुलेटेड रिलेटिव मास ऑफ CH4 कैसे होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अगेन इट्स रिलेटिव मास, क्यों? क्योंकि जो एटम का मास इटसेल्फ इज रिलेटिव, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आएगा वो भी रिलेटिव होगा, ठीक है। तो अब जैसे अब आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट रिलेटिव मास ऑफ CH4, तो हाइड्रोजन एटम का 1 म्यू हो गया रिलेटिव मास, 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4। कार्बन का कितना, 12 म्यू, तो CH4 का कितना, 16। ओके, इट्स वेरी सिंपल, वी जस्ट एडिंग इट। अब देख फार्मूला मास क्या है, इट्स एक्चुअली सेम एज मॉलिक्यूलर मास, जस्ट लाइक डिफरेंट नोमेनक्लेचर। ओके, जब भी आपको कंपाउंड्स आएंगे जो कि आयनिक होंगे, ठीक है, जैसे CH4 इज नॉट आयनिक कंपाउंड, NaOH इज कम आयनिक कंपाउंड, तो उसको फार्मूला मास करते हैं, बट फॉर ऑल न्यूमेरिकल पर्पज इट्स सेम। व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ OH माइनस आयन? सेम अगेन। ओके, मास जो आता है अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते होता है, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो OH माइनस लिखा है, इट डजंट मीन दैट अगेन ऑक्सीजन का आप 16 लो और हाइड्रोजन के 17। मोल कॉन्सेप्ट, वेरी, तो ये मॉलिक्यूलर मास मोल कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एज विल गो इन योर नेक्स्ट क्लासेस दिस यूज्ड टू बी द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख लिया, अब थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं एक और बता दूं, ये जो मॉलिक्यूलर मास हो रहा है अंदर में सारे, जैसे CH4 किया तो कार्बन में कितना, एक कार्बन में 12 एटम, एक कार्बन एटम का वेट जो हो गया 12 हो गया, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन थे, ठीक है। तो एक एटम का जो वेट है दैट इज ऑलवेज सेम, ठीक है, सॉरी, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें जो वो सेम हो जा रहा है, लेकिन एक एटम का जो वेट होगा वो वैरी करेगा एलिमेंट वाइज। सो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट कार्बन के एक एटम के बराबर नहीं है, ठीक है। ऑलवेज कीप इन दिस माइंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मोल कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.033 इंटू 10 टू पावर 23, which is all this number is also known as Avogadro number। ये क्या बोलता है? एक डजन कितना होता है? 12, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ मन, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, कुछ भी ले लो, 1 मोल ऑफ बसेस मीन्स क्या? 6.023 बसेस, ठीक है। तो इसे 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स क्या कि 1 मोल ऑफ CO2 हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, has same number of molecules as NaOH molecules n equal to Avogadro number। तो 1 मोल मॉलिक्यूल में उतना ही मॉलिक्यूल होंगे जितना 1 मोल एलिमेंट में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वेट कर लो, जैसे मास ऑफ 1 मोल CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल NaOH, रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि एटम उसमें बराबर, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, लेकिन हर मॉलिक्यूल का वेट अलग है, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट्स ट्रू। लेकिन हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम का जो वेट होगा वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के वेट के बराबर होगा नहीं, बिकॉज एटम वेट अलग होता है, ठीक है। तो नोट, मास ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल कितना हो गया?
तो 6.02 × 10⁻³ इतना टोटल एटम होगा उसमें, एलिमेंट में, या इतना टोटल मॉलिक्यूल होगा इनटू मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, कोई डाउट प्लीज राइट अस। मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन कितना हो गया, फिर लेट्स कैलकुलेट इट। तो 6.02 अवोगाड्रो नंबर, इतना उसमें एक मोल में इतने हाइड्रोजन के एटम होंगे, फिर एक एटम का जो वेट है 1 म्यू के बराबर हो गया, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना म्यू हो गया। अब एक म्यू में 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स टू 1 ग्राम। ओके, तो इन सब कॉन्सेप्ट पे आपको अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ HCl। तो क्या करेंगे, एक मोल HCl का ग्राम निकाल लीजिए। ठीक है, कि कितना ग्राम हुआ, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया 1 ग्राम, Cl का 35.5, सो 80 ग्राम डिवाइडेड बाई 36.5, डन, इतना नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, देन कैलकुलेट वेट एंड moles of 160 × 10⁻23 molecular HCl. Again, Avogadro number of molecules means 6.023 × 10⁻³ is equal to 1 mole of HCl. तो इतना, तो 6 divided by इतना, finished. ठीक है, challenger question. If calcium atoms are put in line up to 1 kilometer, okay, एक एक एटम को ऐसे 1 किलोमीटर तक ऐसे रख दिया जाए कैल्शियम एटम को, तो फाइंड द टोटल मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम्स यूज्ड, रेडियस ऑफ Ca एटम इज इतना। तो क्या करेंगे, वो निकालिए, डायमीटर निकालिए। ठीक है, उस डायमीटर को, तो 1 किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए एंड डिवाइडेड बाई एक एटम का डायमीटर, ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो जितना अभी आपको एटम आया उसमें निकाल दीजिए कि कितना कितना आपको मोल हो गया, तो 6.00 इज इक्वल टू 1 मोल। तो अभी जितना आएगा इस फार्मूले से निकाल के, उतना में कितना आ गया, फिर उतना मोल को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैल्शियम का आपको एटॉमिक मास पता कर लीजिए। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस यू कैन think of, and going forward as you go into 10th class, 11th class, then someday you'll be writing or IIT or PMT exams. So mole concepts, it becomes very tricky. Okay, very important, so be careful. Thank you very much. And just going by, remember number of moles is equal to mass of compound in gram divided by molecular mass of compound in gram. Thank you very much.